Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Sonalpreet Kaur, and if you're watching my video for the first time, don't forget to subscribe my channel, and yes, don't forget to hit the bell icon so that you can get notifications regarding my next video. So in the last video we discussed about what are prokaryotic cells, what are its components, and what are the different structures which are found in a prokaryotic cell. And in today's video, as you can see the diagram, we're going to discuss about the eukaryotic cell. The eukaryotic cell are the cells which contain a nucleus and all the nuclear membrane bound organelles, as you can see in this diagram as well. It possesses a nucleus. It also contains Golgi apparatus, mitochondria, and vacuoles are present, and vesicles are present in this. ER is present. So we can say that eukaryotic cells are those microorganisms or those cells which possess a true nucleus and contain all the nuclear membrane bound organelles. So now let's discuss about their characteristics. As we can see in the picture, the examples of these eukaryotic cells are the plant cell, the animal cell, the euglena or the protista, or the fungal cell. These eukaryotic cells have a true nucleus, and they also contain all the membrane bound cell organelles, as in like mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, vacuoles, endoplasmic reticulum, both the smooth and the rough endoplasmic reticulum. Lysosomes are present, vacuoles are present in eukaryotic cell. In eukaryotic cells, for the process of locomotion, cilia of flagella is present, and the outermost layer of eukaryotic cell is the cell wall. And we can see that this cell wall is made up of a particular substance called the cytoskeleton. अब अगर हम बात करते हैं इसके न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस जो होता है इसका सेंटर मोस्ट पोर्शन है और कोर पोर्शन होता है ये एक किसी भी यूकेरियोटिक सेल का. उसके अंदर हमारा लीनियर डीएनए मिलता है, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन. अब अगर हम बात करें, कुछ यूकेरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और कुछ जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं. अब अगर इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं जो कि इंडिपेंडेंट सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो उसमें आ जाता है फाइटोप्लैंक्टन्स, zooplanktons, protozoa and algae, whereas others which are multicellular organisms and possess all the eukaryotic characters are the plant cell or the animal cell or the fungal cell. तो आज की क्लास में हम बेसिकली जो मेन चीज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एनिमल सेल which is and the plant cell. But in today's session we're gonna study about only the animal cell. कोई भी एक यूकेरियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर एक टिपिकल सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं. सबसे बेसिक एग्जांपल लेके जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारा एनिमल सेल. इसका जो शेप होता है और साइज होता है वो वेरी कर सकता है. अगर साइज की बात करें तो वो रेंज करता है फ्रॉम 1 to 100 माइक्रोमीटर्स, और इसके आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्या होती है, हमारी plasma membrane, and they also contain what, the membrane bound nucleus and the membrane bound cell organelles. अब components की बात करते हैं. सबसे पहला component जो हम डायग्राम देख के डिस्कस कर सकते हैं वो होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसके बाद आता है हमारा साइटोप्लाज्म जो कि हमारा जेल लाइक अपीयरेंस देता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये इसकी जो सेल होता है उसकी शेप को मेंटेन करके रखती है. साइटोप्लाज्म आ गया. साइटोप्लाज्म में मेजरली हमारे सारे ऑर्गेनल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा उसमें साइटोस्केलेटन होता है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए या फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स या फिर फिलामेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में भी काफी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर एनवलप हो गया, न्यूक्लियर पोर हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, और इसमें भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं.
नेक्स्ट आता है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हम देख सकते हैं ये भी प्रेजेंट है। देन वी सी इज लाइसोसोम्स। फिर पूरे इस स्ट्रक्चर में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ईआर प्रेजेंट होता है, आइदर इट्स अ स्मूथ ईआर और द रफ ईआर। गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। तो ये है हमारे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दीज कंपोनेंट्स। सबसे पहले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये एक किसी भी सेल को उसके आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखता है। इसके अंदर स्पेसिफिक एम्बेडेड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सचेंज करने में हेल्पफुल होते हैं सब्सटेंसेस के सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। दैट मीन्स कि वो कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंसेस जो होते हैं उन्हीं का ही मूवमेंट करवाती है, बाकी हर किसी का नहीं करवाती। अगर हम बात करें कि मेजर फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो सबसे मेजर जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर के सेल को मेंटेन करने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत बेनिफिशियल होती है और इम्पॉर्टेंट होती है। इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो हमने पहले भी पढ़ा था कि ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है और प्रोटीन्स जो होते हैं वो इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। इसीलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका जो अपीयरेंस होता है वो मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो ये होती है कि एनिमल सेल्स जो होते हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो हमारा साइटोप्लाज्म है। ये हमें भी पता है, पहले भी हमने पढ़ा था कि ये जो है ये सेल को जेल लाइक अपीयरेंस देता है। ये एक जेली सब्सटेंस होता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका जो मेजर स्ट्रक्चर कंपोनेंट की बात करें तो 70 to 80% जो है साइटोप्लाज्म वो वाटर से मिलके बना हुआ होता है। उसके अलावा उसके अंदर हमें ग्लूकोज, पॉलीसैकेराइड्स, अमीनो एसिड्स, डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लिसरॉल्स, फैटी एसिड्स ये सब भी मिल सकते हैं। उसके अलावा भी हम बोले तो आयंस ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम जो होते हैं वो भी साइटोप्लाज्म में हमें मिल सकते हैं। जो मेजर प्रोसेसेस होते हैं साइटोप्लाज्म में जो अकर होते हैं वो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ। ये सब जो होता है ये हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। नेक्स्ट आते हैं हम साइटोस्केलेटन। ये क्या होता है? ये ट्यूब्यूल्स ऑफ फिलामेंट्स जो होते हैं उनका एक नेटवर्किंग होता है एंड ये जो सेल होता है उसको एक पर्टिकुलर शेप देता है। और इसके जो मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन जो साइटोस्केलेटन का होता है वो यही होता है कि वो एक सेल डिवीजन में और सेल सिग्नलिंग में हेल्पफुल होता है। अब अगर हम बात करें यूकेरियोटिक सेल की तो इसमें जो ये साइटोस्केलेटन है एज यू कैन सी ऑल्सो इसमें जो साइटोस्केलेटन होता है वो 3 मेजर चीजों से मिलके बना हुआ होता है। एक तो माइक्रोफिलामेंट से मिलके बनता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलके बनता है और माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना हुआ होता है। फ्लैजेला और सीलिया की बात करते हैं तो फ्लैजेला क्या होता है हमने प्रोकैरियोटिक सेल में भी डिस्कस किया था कि ये किसी भी सेल को मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर उस सेल को मूव करना है तो उसमें फ्लैजेला जो होता है वो प्रेजेंट होता है। हमने इसके डिफरेंट अरेंजमेंट्स भी स्टडी किए थे। आपको याद होगा बैक्टीरियल सेल में कि वो कैसे कैसे अरेंज होते हैं कि या एक साइड एक एंड पे प्रेजेंट है तो मोनोट्राइकस, अगर पूरे पे प्रेजेंट है तो पेरीट्राइकस, या फिर एक क्लम्प की तरह एक एंड पे प्रेजेंट है या दोनों एंड पे प्रेजेंट है। इसके बेसिस पे हमने इसका सेलुलर अरेंजमेंट भी पढ़ा था। अब इस केस में बात करते हैं फ्लैजेला जो होते हैं ये लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से निकलते हैं और बाहर की तरफ एक्सटेंड होते हैं। ये किसी भी सेल को मूवमेंट में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। सीलिया जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, किसी भी सेल पे अगर प्रेजेंट होते हैं तो नंबर में। फ्लैजेला होता है या तो वो एक होता है या फिर 2 होता है। अगर हम सीलिया की बात करें तो ये बहुत छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं और पैरामीशियम का एग्जांपल लेते हुए अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें जो ये होता है सीलिया ये काफी शॉर्ट एंड थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसके पूरे इंटायर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और ये इसको मूवमेंट में भी हमको हेल्प करते हैं। किसको? पैरामीशियम को। की बात करें तो वो हमारा है न्यूक्लियस जो कि मेन ऑर्गन होता है या वाइटल ऑर्गन होता है किसी भी सेल का। अब जो न्यूक्लियस होता है उसके मेजरली 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है क्या? एक तो वो जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है। दूसरा, जितनी भी सेल में मेजर एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करने का काम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का होता है।
जैसे कि सेल्यूलर एक्टिविटीज जो सेल के अंदर होती है, जो न्यूक्लियस में होती है, वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, सेल ग्रोथ हो गया या सेल रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारा का सारा जो काम होता है वो मेजरली कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है, वो कौन से फॉर्म में होता है, वो डीएनए के फॉर्म में होता है, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब जो क्रोमैटिन होता है वो क्या होता है, वो एक तरीके का टैंगल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हमें मिलता है। जब सेल को डिवाइड करना होता है तो यही क्रोमैटिन जो होता है ये ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम डायग्राम में अगर देखते हैं तो हमने एक स्ट्रक्चर और देखा है, न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी प्रेजेंट होता है। इसका मेजर जो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस और फंक्शन जो होता है न्यूक्लियोलस का वो यही होता है कि वो राइबोसोम्स को बनाने में हेल्पफुल होता है। आउटस्कर्ट्स की बात करें इसके, तो आउटर स्ट्रक्चर में अगर हम देखें न्यूक्लियस के, तो इसमें हमने देखा कि एक न्यूक्लियर एनवलप है। न्यूक्लियर एनवलप में दो लेयर्स होती है, इनर लेयर एंड द आउटर मेम्ब्रेन और द इनर मेम्ब्रेन। और उसके अलावा हमने देखे हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस का मूवमेंट करते हैं इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म के बीच में। अगर हम बात करें मेम्ब्रेन्स जो होती हैं इसकी, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर एनवेलप की, वो परमिएबल होती है आयंस, मॉलिक्यूल्स और आरएनए मटेरियल के लिए, ताकि वो अंदर आ और जा सके इजीली। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की हम बात करें तो वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? वो प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर हम बात करें इस माइटोकॉन्ड्रिया की, इसमें भी दो मेम्ब्रेन्स होती है, इनर मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर हम अभी इस डायग्राम में देख सकते हैं कि छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो उसमें फोल्डेड होती है। हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं क्रिस्टी। जो मेजर फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, एक तो हो गया एटीपी प्रोड्यूस करना और दूसरा सेल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ओवल शेप्ड होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और इसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स और डीएनए होते हैं, इसीलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। नेक्स्ट ऑर्गेनल जो आता है वो हमारा वैक्यूल आता है। वैक्यूल की बात करें तो ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका मेजर फंक्शन जो होता है वो स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का होता है। जितना भी सेल का कोई भी एक्सक्रीटरी और लेफ्ट ओवर जो वेस्ट मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि डाइजेशन के बाद या किसी भी प्रोसेस के बाद जो निकलते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कैसे लेके जाए जाते हैं? थ्रू दीज वैक्यूल्स। वो इन वैक्यूल्स में स्टोर हो जाते हैं और उसके बाद वो ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा गोल्जी बॉडीज। कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ऑर्गेनल को स्टडी किया था और डिस्कवर किया था, इसीलिए इन्होंने इसका नाम क्या रखा गया? गोल्जी बॉडीज। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये 5 से 6 कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं या कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। ये जो सिस्टर्नी होते हैं ये फ्लैट और डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं कि एकदम फ्लैट और डिस्क जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। इनका जो मेजर कंपोनेंट और जो मेजर काम होता है वो यही होता है कि वो शिपिंग में हेल्प करते हैं। कोई भी अगर सेल का केमिकल प्रोडक्ट्स जो बनता है या कुछ भी है उसके शिपमेंट में ये हेल्प करते हैं। दूसरा, ये मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स करते हैं एंड लिपिड्स करते हैं जो कि कहाँ बनते हैं? हमारे ईआर में। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ईआर, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर हम बात करें तो ये कॉम्पैक्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ट्यूब्यूल्स होते हैं। आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कि ये कॉम्पैक्ट है, सैक और ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब इनका जो मेजर काम होता है वो ये होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं बायोकेमिकल सब्सटेंसेस का इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इनके जो स्ट्रक्चर होता है, जो सरफेस होता है, उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते और जो एसईआर होता है उनका मेजर काम होता है कि वो प्रोडक्शन करते हैं लिपिड्स और फैट्स का। रफ ईआर की बात करें तो रफ
जो होता है रफ स्ट्रक्चर जो होता है वो बल्कि या रफ इसलिए दिखता है क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनके सरफेस पे। और जो मेजर काम होता है आरईआर का वो ये होता है कि जो आरईआर होता है वो प्रोडक्शन करता है किसका और प्रोसेसिंग करता है प्रोटीन्स का। नेक्स्ट आते हैं हमारे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं उन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। तो उनको हम सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं? उनको हम सुसाइडल बैग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जिस सेल के अंदर रह रहे होते हैं वो उसी सेल को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखते हैं। कैसे रखते हैं? ये जो लाइसोसोम्स होते हैं इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन के प्रोसेस या फिर कुछ भी होता है एक्सक्रीशन हो गया या फिर सेल रिन्यूअल प्रोसेस में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। अगर कोई भी सेल है जो खुद से डैमेज हो गया है और वो ठीक नहीं हो सकता है तो लाइसोसोम जो होते हैं उस सेल को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं। मतलब सेल जो है वो खुद ही डिस्ट्रक्ट होके अपने आप कोलैप्स हो जाएगा और मर जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रोसेस को कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ या फिर अपोप्टोसिस। ये जो प्रोसेस होता है इससे जो सेल है वो अपने आप खुद ब खुद मर जाता है। कैसे? लाइसोसोम जो होते हैं उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं तो वो सिक्रीट कर देता है और सेल जो होता है वो डाई कर जाता है। अगर हम बात करें राइबोसोम्स की तो राइबोसोम्स जो होते हैं ये टाइनी ऑर्गेनेल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे से होते हैं। और ये किसके मिलके बने हुए होते हैं? ये 60% आरएनए एंड 40% प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, तभी ये हमें प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में ये 70S टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में ये 80S टाइप के होते हैं। कोई भी राइबोसोम जो होता है उसमें दो सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है, एक होती है लार्जर सब यूनिट और एक होती है स्मॉलर सब यूनिट। अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करें तो इसका जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 60S का होता है और 40S का होता है उसका स्मॉलर सब यूनिट। नेक्स्ट जो होता है वो इम्पोर्टेंट जो फीचर होता है वो यही होता है कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये हम न्यूक्लियोलस में प्रोड्यूस कर होते हैं। वेसिकल्स जो होते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं विद इन द सेल। अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक टिपिकल टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके शेप को मेंटेन करके रखते हैं। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को लेट्स सपोज इस वेसिकल को एनगल्फ करना है तो उस टाइम पे ये उसको प्रोटीन्स हेल्प करते हैं कि वो उस सब्सटेंस को एनगल्फ करके अपने अंदर ले सके और एक छोटा सा वेसिकल बना के मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट करवा सके सब्सटेंसेस का सेल के अंदर। So that's all for today. In today's video, we discussed about what are eukaryotic cell, what are the characteristics of eukaryotic cell. Eukaryotic cell का हमने basic example लेके study किया, that is the animal cell. Animal cell के अंदर कौन कौन से structures मिलते हैं और किसका क्या function होता है और क्या किस name से जाना जाता है वो हमने आज के इस lesson में study किया. In the next video, we're gonna discuss about the plant cell and the difference between the animal and the plant cell. So thank you so much for watching my video, and yes, don't forget to subscribe my channel and keep watching. Thank you.